Morning and Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are safe at home. Today the date is 13 July 2020 and the day is Monday. It's your chemistry class as we have completed chapter number 4. Now we are going to start chapter number 5. Hopefully you have the practice of the MCQs and short question in the weekend. The PDF file that I have sent you. Now we are going to start our next chapter, chapter number 5, which is about the physical states of matter. ठीक है, what is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. Let's start this topic. Matter exists in three physical states: gas, liquid, and solid. Highlight this point. There are three physical states of matter. The simplest form of matter is gaseous state. Liquid are less common and most of the matter existed as solid. Matter in gaseous state does not have definite shape and volume. Therefore, gases occupy all the available space. Their intermolecular forces are very weak. Pressure is a significant property of gases. The effect of pressure and temperature on volume of gas has been studied extensively. In this paragraph it is said that there are three states of matter. हमारे पास matter की तीन states होती हैं. What is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. और हमारे पास matter की तीन states होती हैं. कौन कौन सी? Solid, liquid and gas. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो अब इनके वो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. वो कह रहे हैं जो गैस है इसके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए आप इसको किसी भी जगह पे या किसी भी एरिया में अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो वो सारा ही एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस बहुत कम होती हैं और इनके दरमियान में जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं ये इनका आपस में दूसरे के साथ कह लें कि कनेक्शन बहुत वीक होता है और इसलिए ये फ्रीली मूव करते हैं. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में गैस की कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन तो होती है लेकिन सॉलिड की निस्बत वो कम होती है और उनको जिस भी आप शेप में उनको करना चाहें आप लिक्विड को कर सकते हैं. सपोज दैट अगर आप उनको ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप ले लेते हैं, अगर आप उनको जग में डालते हैं तो वो जग की शेप ले लेते हैं. मतलब आप उनको किसी भी बर्तन में डालते हैं तो वो उस बर्तन की शेप जैसा ही आपको लिक्विड अपनी शेप दे देता है. सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स की आपस में जो कह लें कि फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. इनका आपस में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से ये इनके जो शेप है वो सख्त होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है और ये कोई भी शेप इजीली नहीं लेते बल्कि इनको शेप देनी पड़ती है. नेक्स्ट पैराग्राफ इज The liquid state has strong intermolecular force, hence it has definite volume but it does not have definite shape. Highlight this point. It attains the shape of the container in which it is kept. ये मैं आपको पॉइंट बता चुकी हूँ कि हम इसको किसी भी जिस कंटेनर में डालते हैं लिक्विड को, लिक्विड उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेते हैं. Liquid evaporates and their vapors exert pressure. When vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure, it boils. We will discuss this point in detail in this chapter. Liquids are less mobile than gases, therefore they diffuse slowly. The solid state has definite volume and shape. Highlight this point. They are rigid and denser than liquid and gases. They exist in amorphous or crystalline forms. These forms will also discuss in detail in this chapter. Let's discuss the properties of gaseous state. Typical properties. Gases have similar physical properties. A few physical properties are discussed here. First point is diffusion. Gases can diffuse very rapidly. Diffusion is defined as the spontaneous mixing up of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture. डिफ्यूजन क्या होती है?
सपोज डैट अगर आपने एक ग्लास वाटर का लिया है, अगर आप उस ग्लास वाटर के अंदर एक ड्रॉप इंक का डालते हैं तो आप देखेंगे अगर आप उसको शेक करें या थोड़ी देर वैसे ही रखें तो थोड़ी देर के बाद वो पूरे ग्लास का जो वाटर का जो कलर होगा वो सारा ब्लू हो जाएगा। इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी ये रीज़न होती है कि हमें पता है कि लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन द रैंडम मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन। वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को एक जैसा ही कर लेते हैं। ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे आपको समझाने के लिए थी, लेकिन अगर आप सिंपल अगर ये देखें कि आप रूम में हैं लेकिन आप एक कॉर्नर पे खड़े होकर परफ्यूम लगाते हैं या बॉडी स्प्रे लगाते हैं, लेकिन आप वो परफ्यूम या बॉडी स्प्रे एक कॉर्नर पे खड़े होकर लगाते हैं, लेकिन उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में जो कह लें कि फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। वीक फोर्स होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन फ्री मूव करते हैं। फ्री मूव करने की वजह से उनकी जो खुशबू है पूरे कमरे में फैल जाती है, और दिस इज़ कॉल्ड होमोजीनियस, कि जब पूरे कमरे में एक जैसे ही खुशबू फैल जाए या ठीक है, उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस मीन्स क्या है? सेम, कि उनका जो हर जगह पे उनकी इक्वल रेशो ही रहे, तो इसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। हम लोग ये गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। मॉलिक्यूलर मास इस पर डिपेंड करता है कि जो गैस जितनी ज़्यादा हैवी होगी वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगी डिफ्यूज़ होने में, और जो गैस जितनी ज़्यादा लाइट होगी वो उतना ही टाइम लेगी उसको डिफ्यूज़ होने में। लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ रैपिडली देन हैवियर वंस, ठीक है। जो लाइटर गैसेस होंगी वो डिफ्यूज़ जल्दी कर जाएंगी एज़ कम्पेयर टू हैवियर वन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डिफ्यूज़ 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास मास आपको पता है वो 16 होता है, जबकि हाइड्रोजन का वो 1 होता है। तो हाइड्रोजन वो जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम्स ग्रेटर डिफ्यूज़ करेगी एज़ 14 टाइम्स ग्रेटर डिफ्यूज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वो कैसे डिफ्यूज़ करेगी? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इस लॉ के अकॉर्डिंग R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। आपने इसको समझना है। बाकी ये ज़रा थोड़ा हाई लेवल का कह लें कि ये फार्मूलाज और ये सारे हैं, लेकिन ये किस तरह से गैसेस डिफ्यूज़ करते हैं जस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। H2 हमारे पास ये ऑक्सीजन थी और हाइड्रोजन गैसेस थी, ठीक है। 32 और 2 और उसके बाद ये अगर देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग इट। तो ये 4:1। Thus, the rate of diffusion of hydrogen is 4 times faster than oxygen. It is just for your अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना। कि मैंने आपको ये बताना चाह रही थी कि हम लोग किस मेथड के ज़रिए हम लोग इनकी रेशियोज निकालते हैं। तो ग्राहम्स लॉ इज़ द मेथड विच इज़ ग्राहम्स लॉ इज़ यूज्ड फॉर find out the diffusion of the gases. If we have two gases and we want to check that which gases can diffuse faster, so this method is used to find out the diffusion of the gases. It was your overall today's lecture. You have to learn it. If you find any difficulty, you can highlight and solve and ask me. Thank you.